Hello everyone, student. I am teaching you second chapter of economics, sector of Indian economy. And in earlier video, I have told you about primary, secondary, and tertiary sector. Then counting and comparing of three sectors, about the GDP and historical changes in three sectors, and rising importance of tertiary sector. Now we will start next topic where most of the people are engaged. कौन से सेक्टर में सारे पीपल जो हैं engaged हैं. If you will see around yourself, you will find most of people are engaged in tertiary and secondary sector, but this is not fact. If it's still now for more than 50% of our population is engaged in primary sector. So let's see next this topic. Let's start with topic. Let's start with topic where are most of people employed. In earlier video student I have told you rising importance of tertiary sector in production कि अब सबसे ज़्यादा importance किसकी बढ़ रही है, tertiary sector की. And if I will ask from you, you will also say कि मैम we want to go in tertiary sector only. No one wants to go in primary sector. सेकेंडरी सेक्टर में फिर भी लोग जाना चाहते हैं, बट प्राइमरी में कोई भी नहीं जाना चाहते. तो आपको अगर ये टॉपिक लग रहा है वेयर आर मोस्ट ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, तो इट मीन्स आप सोच रहे होंगे मोस्ट ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड इन टर्शरी सेक्टर. टर्शरी सेक्टर में होंगे ज़्यादा एम्प्लॉयड, या प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर में होंगे, क्योंकि हम तो कोई जाना नहीं चाहते ना प्राइमरी सेक्टर में. बट अगर आज भी हम देखेंगे तो हमारे मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन primary sector. In your book there is one table, two tables actually. You can see in these table, in tables में आप देखोगे here is one table, share of sectors in GDP in percentage में है ये यहाँ पर. It is of 1971 and 72. In my book this is maybe in your book it is of 13, 14, 18, 19, so you can compare that. And in 1971 and 72 and 2011 and 12, if you will see in these graphs, you will find that in 1971 and 72 the share of in GDP किस सेक्टर का सबसे ज़्यादा है, that is of primary sector only. After that tertiary sector and then secondary sector. If you will see in 1971 and 72, 42% in GDP किसका शेयर है, that is of only primary sector, 23% of secondary sector और near about 35% of tertiary sector. So ये secondary sector and tertiary sector. Now and next graph you can compare it 2011 and 12. Now share in GDP of primary sector is only 17%. एंड इंक्रीज़ किसका हुआ है, सेकेंडरी का 24. और सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ आप देखोगे जीडीपी में, दैट इज़ ऑफ 59%. सबसे ज़्यादा किसका परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है, 59% इन प्रोडक्शन इन जीडीपी में हुआ है. बट एम्प्लॉयमेंट में क्या, क्योंकि अभी मैं आपको कह रही हूँ स्टिल नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर. और जीडीपी में अगर हम देखेंगे तो कौन सा सेक्टर्स जो है सबसे ज़्यादा जो है उसका रिमार्केबल रहा है, दैट इज़ ऑफ द टर्शरी सेक्टर का. नाउ सी दिस वन, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट इन परसेंटेज. If you will see in 1972 and 73, 74% people of India were engaged in primary sector. Only 11% were engaged in secondary sector and only 15% in tertiary sector. And in 2011 and 12, 49% in primary, then 24% in secondary and 27% in tertiary sector. Now compare GDP and compare employment. यानी कि प्राइमरी सेक्टर का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ ओनली 17%. बट if you will see the employment,
इट गिव्स एम्प्लॉयमेंट 49% पीपल, यानी कि जीडीपी में वो उसका केवल कंट्रीब्यूशन 17% है, यानी कि हाफ ऑफ आर पॉपुलेशन, यानी कि 50% जो हमारा काम करने वाले लोग हैं वो आज भी किस में जो है एंगेज्ड हैं, प्राइमरी सेक्टर में, जिसका कंट्रीब्यूशन केवल कितना है 17%, और जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ 59% ऑफ टर्शरी सेक्टर। इट गिव्स एम्प्लॉयमेंट ओनली 27% पीपल, वो केवल 27% पीपल को काम देता है। इट मीन्स वाई मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर। क्यों एंगेज्ड है? बिकॉज सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर आर नॉट प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट, ये एम्प्लॉयमेंट ही प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, जितना एम्प्लॉयमेंट इनको देना चाहिए उतना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा नहीं पा रहे, इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर। इस अब हम अगर ये देखें कि एम्प्लॉयमेंट 49% पीपल जो है एम्प्लॉयड हैं, बट उनका जीडीपी में केवल 17% है, इसका मतलब वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, खाली बैठे रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, काम कर रहे हैं वो, या काम कर रहे हैं, बट कैसे काम कर रहे हैं मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि जो है इसमें दिस काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर एक एग्जांपल है वैसे एज ए जो है, फिर मैं आपको बाद में बताऊँगी। सी दिस इज़ लक्ष्मी, ये लक्ष्मी है, इसके पास एक फील्ड है, देयर इज़ वन फील्ड, 2 हेक्टेयर फील्ड्स है, इसके पास कोई इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, शी डिपेंड ऑन रेन, यानी कि उसकी फील्ड में अगर बारिश होगी तो वहाँ पर वो क्रॉप्स ग्रो कर पाएगी। क्रॉप्स भी अब आप सोच लो जो है रेनफॉल कब होती है, इन द मंथ ऑफ मई, जून जुलाई में होती है, तो तब उसकी फील्ड में क्रॉप्स होगी जो कि ज्वार अरहर जो भी वो ग्रो करते हैं। तो यानी कि उस जब बारिश होगी तो फील्ड में जो है क्रॉप्स ग्रो होगी। अब उसकी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर्स हैं। लक्ष्मी होगी, उसके हस्बैंड होंगे, 3 उसके बच्चे हैं, ये 5 मेंबर्स हैं। ऑल आर एंगेज्ड इन दिस फील्ड, कि कोई जैसे कोई जो है प्लोइंग कर रहा है, कोई जो है वहाँ पे सीड्स डाल रहा है, कोई हार्वेस्ट कर रहा है, कोई वाटर दे रहा है, तो all 5 members are engaged in that plot, only 2 hectare plot that is depend on irrigation, sorry on rain। मैं क्यों बार बार कह रही हूँ डिपेंड ऑन रेन, रेन पर डिपेंड होने का मतलब है केवल एक क्रॉप उस पर ग्रो की जा सकती है। अगर इरिगेशन फैसिलिटीज़ होती हैं तो 2 क्रॉप्स भी ग्रो की जाती है, अगर रेन नहीं हुई तो क्रॉप्स भी नहीं होगी। तो जो है 5 मेंबर्स इन फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, और ऑल द 5 मेंबर्स आर एंगेज इन दैट प्लॉट। अब दे वर्क थ्रू आउट द ईयर इन दैट प्लॉट, कि दे हैव बिकॉज दे हैव नो वर्क, उनके पास और कोई काम ही नहीं है, दे हैव नो वेयर एल्स टू गो फॉर वर्क। तो यू विल सी ऑल द 5 मेंबर्स आर वर्किंग, बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। कि भाई 2 फील्ड में 2 हेक्टेयर, ओनली 2 हेक्टेयर में अगर 2 पर्सन भी वर्क करेंगे तो भी उतना ही प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन मान लो इसमें होता है 10,000 kg वीट होते हैं, 10,000 kg वीट। कितने लोग काम करते हैं? 5 मेंबर्स। अगर इसी प्लॉट पे 2 मेंबर्स काम करेंगे तो ऐसा है कि प्रोडक्शन घट जाएगी? नहीं, प्रोडक्शन तो उतनी ही होगी, क्योंकि इस फील्ड में इतने मेंबर्स की ज़रूरत ही नहीं है। इट रिक्वायर्स ओनली 2 मेंबर्स की ज़रूरत है, बट कितने जो है 5 लगे हुए हैं। अगर इनमें से 3 को हटा भी दिया जाए तो भी प्रोडक्शन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। बट ये 5 क्यों काम कर रहे हैं? बिकॉज उनके पास और कहीं पर कोई वर्क करने के लिए जो है जगह नहीं है, और कहीं पर भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो यानी कि ऑल आर वर्किंग बट दे आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल, इसलिए दैट इज़ कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसको क्या कहा जाता है? अंडर एम्प्लॉयड कहा जाता है, कि दीज पीपल आर अंडर एम्प्लॉयड, यानी कि दे हैव पोटेंशियल टू डू मोर वर्क
बट दे हैवेंट एनी ऑप्शन, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है. दैट्स वाई ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर वर्किंग इन द सेम फील्ड. तो दिस इज कॉल्ड द अंडर एम्प्लॉयड. इनको क्या कहा जाता है? अंडर एम्प्लॉयड. अब इसी का एग्जाम्पल, अगर इनमें से हम 3 मेंबर्स को हटा दें या 2 मेंबर्स हटा देते हैं, ठीक है. सुखी राम है एक, उसके पास बहुत ज़्यादा, वो लैंड लॉर्ड है, उसके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसके फैमिली मेम्बर्स जो है वो इतना नहीं कर पाते, उसके पास इतनी लैंड है. तो उसको किसकी ज़रूरत होती है? लेबर की ज़रूरत होती है. अब वो लेबर कहाँ से लेके जाता है? लक्ष्मी के जो घर से जो है 2 मेंबर्स को वो अपने यहाँ पर क्या दे देता है? एम्प्लॉयमेंट दे देता है एज द वर्कर्स, एज द लेबर. कि अपने यहाँ उसको लेबर की ज़रूरत है तो वो कहाँ ले जाता है? उसको लक्ष्मी का जो है 2 फैमिली मेम्बर्स को अपने यहाँ वर्क दे देते हैं. अब लक्ष्मी को क्या फ़ायदा हुआ? लक्ष्मी की फैमिली को कि नाउ दे आर एबल टू अर्न. अब उनके पास क्या फ़ायदा हो गया कि नाउ दे आर एबल टू अर्न मोर इनकम. कैसे उनकी मोर इनकम हुई? थ्रू वेजेस. उनको वेजेस ज़्यादा मिल गई. जो वेजेस उन्होंने किसने दी? सुखी राम ने दी. क्योंकि 2 मेंबर्स जो अर्लियर वहाँ एंगेज थे कहाँ काम करने लगे? सुखी राम के पास. अब सुखी राम के पास काम करने से उनकी इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो गई. तो यानी कि जो पहले 5 मेंबर्स की इनकम थी उससे ज़्यादा इनकम उनके पास होने लगी. और इसी तरह हमारे कंट्री में देयर आर लैक्स ऑफ फार्मर्स लाइक लक्ष्मी इन इंडिया. और दिस मीन्स दैट if we remove a loads of people from agriculture sector and provide them proper work elsewhere in like in secondary sector, like in tertiary sector, तो their income will be increased. उनकी इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. तो दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर ऑल्सो, नॉट इन कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ऐसा होता है. अदर सेक्टर में भी होते हैं. कैजुअल वर्कर्स होते हैं, उनमें पोटेंशियल ज़्यादा होती है बट उनको काम ही नहीं मिल पाता है. सर्विस सेक्टर में भी ऐसा होता है कि जो है मान लो कोई बहुत एजुकेटेड है, इंजीनियर है, बट उसको जो है इंजीनियरिंग के उसमें जॉब नहीं मिली और वो टीचिंग कर रहा है. भाई नहीं मिली ना. जैसे मैथ्स फिर पढ़ाना शुरू कर दिया तो पोटेंशियल तो उसमें किसकी है? इंजीनियरिंग का काम करने में. यानी कि वो जो है हमारे लिए एक बेनिफिशियल हो सकता है. बट वर्क उनको गवर्नमेंट या टर्शरी सेक्टर में उनके पास काम नहीं है तो वो कहाँ, टर्शरी सेक्टर में ही जा रहे हैं. बट जो उनकी क्वालिफ़िकेशन, जो उनकी पोटेंशियल है उतनी पोटेंशियल से उनको जॉब नहीं मिल पा रही है. इसलिए उनको दूसरी तरफ शिफ्ट होना पड़ रहा है. तो एवरीवेयर वी कैन सी इन सर्विस सेक्टर लाइक स्ट्रीट पुशिंग ए कार्ड ऑन सेलिंग समथिंग वेयर दे मे स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटिल एंड दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटी. कि कोई चाहेगा कि हाँ रेहड़ी लगा के, जैसे अभी भी बहुत सारे जो है और जो वर्क करते थे, लॉकडाउन हुआ अब उनके पास और तो कोई काम था नहीं तो सब क्या बन गए? वेजिटेबल वेंडर्स बन गए. जबकि उनकी पोटेंशियल और थी कि वो और काम भी कर सकते थे बट दे आर अंडर एम्प्लॉयड. क्योंकि उनको जितनी पोटेंशियलिटी है उसके अकॉर्डिंग हम उनको वर्क प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं. तो दिस इज़ द डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं हम इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू.